Welcome back to my channel, and as I promised you, I am back here, and today we are going to study about very important and I guess the final countdown for biochemistry. So I was just going through what I have to teach today, and it's quite easy if you have basic concepts pre-made. Okay, otherwise also we'll make it easy anyways, don't worry. I want you to come here first and read this. See, the all the lipoprotein stuff, I'm going to talk about it. Lipoproteins, lipid plus proteins. ठीक है, method of lipid transport. Since lipids are non-polar, so we have to make it like this. See, they are non-polar structures, so we have to make them polar by arranging them in such a way inside that proteins बाहर की तरफ है and lipids अंदर की तरफ है. अंदर की तरफ you have phospholipids, you have triglyceride, you have cholesterol esters. All these are arranged अंदर की तरफ. Now next move ahead, we have cholesterol which is amphipathic. ठीक है, लिपिड नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड यहाँ पे होता है. Now lipoproteins, lipids and proteins, now they are arranged. Chylomicrons जो होते हैं, they are exogenous triglycerides and they have ApoB48. काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट में ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों होगा. एपो बी 48 या फिर एपो ई, ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे. तो याद रखना एपो ई के बारे में, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. एपो ई इज प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट and ApoB48 is for chylomicron and chylomicron remnant both. So anything related to chylomicron will have this. Then we have next is VLDL. VLDL has the endogenous triglycerides and it has the ApoB100. VLDL remnants जिनको हम लोग IDL भी बोलते हैं, they have both triglycerides and cholesterol and ApoB100 as well as ApoE. So remnants में ApoE present होता है and LDL में भी ApoE present है. बट LDL में क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है और ApoB100 है और ApoE है. ठीक है. देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस HDL कोलेस्ट्रॉल, HDL में देयर इज ओनली कोलेस्ट्रॉल एंड देयर इज गुड कोलेस्ट्रॉल. इट इज ApoA, ApoC and ApoE are the proteins which are present here. This is also known as the reverse cholesterol because it's coming back from the tissues na. If I arrange them on the basis of their density, chylomicrons have least and HDL have maximum density. See, density of protein upon size and triglyceride content के basis पे when we arrange it, तो सबसे ज़्यादा जो percentage of protein होता है वो HDL में, फिर LDL, फिर IDL, VLDL, chylomicron remnant और फिर chylomicron. दिस इज़ द सेम ऑर्डर इन विच ये एनोड कैथोड में मूव कर रहे होते हैं एनोड की तरफ. ठीक है. साइज और ट्राइग्लिसराइड कंटेंट में देखो तो सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन में होगा, फिर रेमिनेंट, फिर VLDL, फिर LDL, फिर HDL में. डाइट में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉन पोलर. डाइट्री जो भी ट्राइग्लिसराइड आ रहा है वो काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में B48 के साथ होगा. लिवर जो भी ट्राइग्लिसराइड बना रहा है वो VLDL की फॉर्म में B100 के साथ में होगा. ठीक है. HDL क्या करता है, गोज टू द पेरिफेरल टिश्यू, वहाँ पे एलकैट एंजाइम लगती है और फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स जो रिलीज़ हो रहे होते हैं उसके साथ कंबाइन होकर फिर वो लिवर में वापस लेके आता है उसको. सो HDL हैज़ दिस वर्क, जिसमें ApoA1 उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है, ApoA2 जो होता है उसको इनहिबिट कर रहा होता है. लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज इज द एंजाइम हियर. ओके. काइलोमाइक्रॉन एंड VLDL में क्या हो रहा होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम करती है फिर उसको रेमिनेंट में बदल देती है एंड दिस इज स्टिमुलेटेड बाय ApoC1 C2 बट इनहिबिटेड बाय C3. fair enough. Cool. Okay, now just see, have a look at this.
आई ऑलरेडी टोल्ड यू टेंडन जैंथोमास है तो कोलेस्ट्रॉल की बात चल रही है, इरप्टिव जैंथोमास है तो ट्राइग्लिसराइड की बात चल रही है, मिल्की प्लाज्मा मिल्की प्लाज्मा है तो काइलोमाइक्रॉन्स की बात चल रही है, और अगर एक्यूट पेन वगैरह है, पेनकिटाइटिस हो गई, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। पामर एंड ट्यूबरो इरप्टिव जैंथोमास में काइलोमाइक्रॉन एंड वीएलडीएल रेमिनेंट्स बढ़ेंगे। Okay, now we are going to do very important these type of hyperlipoproteinemias, and I'll tell you only the crux point how you have to identify each one out. Type 1 is known as hyperchylomicronemia. यानी यहाँ पे chylomicrons are increased. Why they are increased? Because there is lipoprotein. Okay, familial hyperchylomicronemia जिसमें lipoprotein lipase जो होता है is defective. So this leads to accumulation of chylomicron and VLDL. तो triglyceride बढ़ जाता है, cholesterol kind of normal. Type 2 is hyper. Type 2A is familial hypercholesterolemia. इसमें LDL रिसेप्टर डिफेक्टिव होता है। LDL रिसेप्टर डिफेक्टिव होता है तो इसमें कौन एक्यूमुलेट होगा? LDL। ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। Why? Because we already know that LDL consists of what? Cholesterol only. Then the third one is familial combined hyperlipoproteinemia. Here the effect is unknown and there is both VLDL and LDL increase, so both triglyceride and cholesterols are raised. Type 3 में is this beta lipoproteinemia, this is also known as the broad B disease. Broad B disease है तो कौन accumulate होगा? VLDL remnants and LDL remnants will get accumulated. Okay, ब्रॉड बीटा वैसे भी हम लोग आईडीएल को बोलते हैं ना, तो वी एल डी एल रेमिनेंट और एल डी एल रेमिनेंट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो दोनों ही चीज़ें बढ़ेगी ट्राइग्लिसराइड और वो एपो ई के डिफेक्ट की वजह से ये होता है। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज एल्फा ऑक्सीडेशन। पेरोक्सिसोम्स में होता है, कोई एटीपी गेन नहीं होता, पर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स लाइक फाइटानिक एसिड्स आर ब्रोकन डाउन। रेफसम्स डिजीज इज द डिसऑर्डर इन विच फाइटानिक एसिड accumulates within the peroxisomes due to the defective alpha oxidation. This phytanic acid alpha oxidase enzyme or phytanic acid alpha hydroxylase which leads to early death. Omega oxidation में क्या होता है? No ATP for medium chain fatty acid oxidation. ये एंडोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड. ओके, दैट इज द सेकंड पार्ट. बट रेफसेंस डिजीज यू मस्ट नो. And Zellweger we already read. What did we read in case of Zellweger syndrome? We read na that it is due to peroxisomes में we it leads to formation of what? Ghost peroxisomes. Why ghost peroxisomes? Because the peroxidase enzyme is defective there. Okay, so because of this deficiency, this we are read na, in peroxidosomes alpha oxidation of long chain fatty acids is defective, so this leads to peroxisome, ghost peroxisome or empty looking peroxisome accumulation, which is Zellweger syndrome. Okay, now moving ahead, up next is the genetics part. So it is quite simple one. See, there are different kinds of the chromosomes, in which I want you to remember that the metacentric is matlab at the center. You have P arm, you have Q arm. These are considered as primitive type of chromosome, and you remember how to do half, ek mera, ek tera. Okay, but tera is an akkad wala na, so it is acrocentric, but 1 and 3 are half. That is metacentric, sorry. Then we have submetacentric. Submetacentric में majority of the autosomes including the X is submetacentric. One is small, one is large. Then we have acrocentric. You have to remember 13, 14, 15, Y chromosome, 21, 22. These are acrocentric. And telocentric are not present in human beings. So it's an advantage that you don't have to remember those. Very good. Now I want you to see this number of bar bodies present. So we already know a normal male will have 0 bar bodies. Matlab number of X chromosome -1 is the bar body number. So you can easily find out Turner will have 0, Klinefelter 1, super female will have 2 bar bodies. Okay. Now I want you to read the DNA replication, which I will teach you. You don't just have to go somewhere, but I'll just teach you a bit of factual stuff
which will get clear once we'll read the whole cycle. So don't worry, just be with me and just read this. The DNA replication may we have two processes. One is the proofreading, one is the repair. Proofreading is occurring during the synthesis, repair is occurring after the synthesis of DNA or RNA, whatever, DNA. Okay. Proofreading is an enzymatic activity जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चल रही होती है. रिपेयर इज मोस्टली एंडोन्यूक्लियस, समटाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में भी यूज्ड. प्रोकैरियोट्स में प्रूफ रीडिंग इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज टू, रिपेयर भी डीएनए पॉलीमरेज टू. लेकिन यूकैरियोट्स में ऑल द डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग एक्सेप्ट अल्फा बीटा. एंड रिपेयर के लिए यूकैरियोट्स में वी हैव बीटा which is doing the main work of repair, and sometimes epsilon plays a minor role. Phases of cell cycle, तो प्रूफ रीडिंग जो होती है वो एस फेज में हो जाती है, वेयर एज रिपेयर जो होता है इट अकर्स इन द G1 फेज. ओके, सो प्रूफ रीडिंग तो सिंथेटिक फेज में हो जाएगी ना, बिकॉज इट इज अकरिंग ड्यूरिंग द सिंथेसिस. प्रीटी सिंपल टू रिमेंबर. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट एक्सोन्यूक्लियस और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज कौन से डायरेक्शन में होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सो जस्ट रिमेंबर दिस विल हेल्प यू. नाउ अ बिट अबाउट दिस डीएनए पॉलीमरेज मॉडल. सो यू सी दिस DNA polymerase is made up of three segments. There, matlab it has three functions. There is a smaller fragment which has 5 prime to 3 prime exonuclease activity. The other one has 3 prime to 5 prime exonuclease activity, and polymerase to 5 prime to 3 prime ही होती है polymerase activity. देखो ये दोनों normal है, but the smaller fragment exonuclease activity वो भी 5 prime to 3 prime में. This is unique. Okay, this is unique to DNA polymerase 1, and the function is mainly to remove the RNA primer. But if we are using Bacillus subtilis bacteria ka toxin to cut it, now what is the enzyme to cut it? Now what will remain is known as a large fragment or the Nilo fragment, Lino fragment, and Kino fragment. I don't know what to say. Kino, Clino, whatever fragment. ठीक है, लार्जर फ्रेगमेंट. इसमें क्या होगा, इट विल हैव अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, पॉलीमरेज एक्टिविटी विच विल डू द फंक्शन ऑफ गैप फिलिंग, बट नो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. ठीक है, तो दिस एंड दिस इज नोन एज नोलेसी फ्रेगमेंट, नीलो. ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में वी वर टॉकिंग. सो आई वांट टू टीच यू द डीएनए पॉलीमरेज विच आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, and then I'll teach you the DNA polymerase of eukaryotes, and then we'll move on to the DNA replication proper, and I'll teach you lacoperon at the end. Okay, तो देखो यूकेरियोट्स में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 और एक डीएनए जी प्रोटीन होता है. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसका काउंटर, जिसको हम लोग कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, कॉर्नबर्ग एंजाइम. नाउ दिस कॉर्नबर्ग एंजाइम, this Kornberg enzyme, what it does, it removes the primer and fills the gap, fair enough. Similar work in eukaryote DNA polymerase is done by RNase H, flap endonuclease and delta polymerase in nucleus, and in mitochondria by RNase H and flap endonuclease. फाइन. अब डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर मैं बात करती हूँ, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 डज द वर्क ऑफ प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर. ठीक है, दो नंबरी काम ही करेगा ना, प्रूफ रीडिंग करेगा और रिपेयर करेगा, दोनों 2 नंबरी के काम है ना, तो यू डू प्रूफ रीडिंग और रिपेयर. बट इन यूकैरियोट बीटा और गामा इस काम में. आई टोल्ड यू repair work mainly done by beta, but in mitochondrial DNA synthesis is by gamma. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस इज बाय गामा. देन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा होता है, पर यहाँ पर एक्चुअली लीडिंग स्ट्रैंड की, और यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग का करता है, लैगिंग का डेल्टा करता है, लैगिंग स्ट्रैंड का डेल्टा डज द
this thing. Okay. Then DNA is G in prokaryotes, is similar to DNA polymerase alpha, which has primase activity. Okay, synthesizes primers. DNA is alpha. So you are able to understand, correlate. Are you able to? I think you should be able to. Okay, if you've read it, you will be able to. DNA polymerase दोनों चीज़ों में तुमने यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों में देख लिया. यूकेरियोट में क्या है, अल्फा बीटा ऐसे करके नेमिंग है. प्रोकैरियोट में क्या है, 1 2 3 नेमिंग है. प्रोकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, जिसको हम लोग कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं. कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं कि इट विल रिमूव द प्राइमर एंड फिल द गैप. और ये काम न्यूक्लियस में कौन कर रहा था यूकेरियोट में, डी आर एन एज एच फेन 1 डेल्टा. और माइटोकॉन्ड्रिया में आर एन एज एच फेन 1. डीएनए पॉलीमरेज 2 प्रूफ रीडिंग कर रहा होता है एंड रिपेयर कर रहा होता है. बीटा जो है डीएनए रिपेयर कर रहा है. गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस कर रहा है. अल्फा प्राइमेज रिपेयर mitochondrial DNA synthesis, leading and lagging strand and leading strand. Fair enough. Okay, fair, very good. Okay, now so moving ahead, now let's read DNA replication. So till now we have completed a bigger portion of biochemistry, and the only way in which it is better to revise all of it is actually repeating what we have read quite a few times, so that there are no regrets left about anything. Yeah, so let's just begin. I'll teach you DNA replication and then we'll do the lac operon thing, and most of the parts we've covered. Then we have the vitamin portion left, which is quite easy and simple. So let's begin. देखो, DNA replication में there are certain steps which are working and you actually have to remember the order. The first one is helicase, in which there is separation of these strands. Okay, so helicase strand separation करता है, uses ATP to produce supercoils. Okay, now after the supercoiling has been produced, this topoisomerase is relieving the supercoiling. Then we have single stranded DNA binding protein which increase the affinity for single strand. Then primase आता है, it synthesizes the primer, takes DNA as template, makes RNA on it by the help of enzyme DNA dependent RNA polymerase. Next, we have action of DNA polymerase 3, which synthesizes both the leading and the lagging strand. And see, this is the leading strand जिसमें बस एक ही प्राइमर बनता है. लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जिसको बोलते हैं. This is DNA dependent DNA polymerase. Then we have DNA polymerase 1, which removes the primer and fills the gap. And ultimately ligase, which have 3 5 phosphodiesterase bond which forms 3 5 phosphodiesterase bond using an ATP. ठीक है. मास्ट सेल, सोमैटिक सेल, मोस्ट ऑफ द सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं जिसमें एजिंग और डेथ होती है. ठीक है. अनवाइंडिंग वो ऊपर का पार्ट है, नथिंग इम्पॉर्टेंट देन हियर. बट क्या होता है, टीलोमेरेज शॉर्टनिंग इज अ पार्ट. क्या होता है दैट इन द लीडिंग स्ट्रैंड this telomerase enzyme is there only in germ cells and cancer cells. What happens is some portion of usually the some portion of leading the topoisomerase में it lays a RNA template and then DNA is produced. So this is RNA dependent DNA polymerase, which is not a ribozyme. Okay, not a ribozyme, RNA dependent DNA polymerase. Question आया था ये. ठीक है. अब क्या है, ये बात है, ये वही है जो मैंने तुम्हें बताई अभी. सब एक चीज़ ये वाली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. बिफोर बिगिनिंग अप विद RNA वाला सेगमेंट ना, आई वांट टू टीच यू कि कौन से में क्या कर रहे होता है. राइट. प्रूफ रीडिंग हमें पता है सारे कर रहे हैं यूकेरियोट में,
और प्रोकैरियोट में बीटा और प्रोकैरियोट में 1 2 3 कर रहे हैं प्रूफ रीडिंग। रिपेयर प्रोकैरियोट में 1 2 कर रहे हैं और एप्सिलॉन एंड बीटा रिपेयर कर रहे हैं यूकैरियोट में। बीटा वाला मेन है। तो ये यहीं पर लिख लेती हूँ मैं। देखो, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, डीएनए की बात कर रही हूँ, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स और वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में 1 2 3 ऐसे है, यूकैरियोट्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ऐसे है। अब इसमें क्या कह रहा है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 1, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे क्या काम करता है, प्राइमर लगाना। प्राइमर नहीं होता है, आई थिंक इट्स रिमूविंग द प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। ओके, सो रिमूव द प्राइमर एंड फिल द गैप। पर नॉर्मल जो हम लोग लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर रहे होते हैं, वो हमारा कौन कर रहा होता है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा होता है। और जो प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 2 कर रहा होता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव रेड। प्रूफ रीडिंग और रिपेयर प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 2 कर रही है, डीएनए पॉलीमरेज 2 कर रही है। फेयर इनफ, फेयर टिल नाउ, वेरी गुड। नाउ देन ये अल्फा बीटा ये यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में ये क्या कर रहा होता है, अल्फा इज एक्चुअली प्राइमेज विच लेज द प्राइमर, beta is for repair, and to some extent epsilon is also for repair, but for time being just leave it. If you're talking about repair, talk about beta. If you're talking about proofreading, all have except alpha and beta, ठीक है, all except alpha and beta have proofreading. उसके बाद अब गामा का क्या काम है, देखो, गामा इज़ फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, डेल्टा इज़ फॉर लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, oh sorry नहीं, gamma is for mitochondrial DNA, epsilon is for lagging strand, and epsilon is for leading strand. बहुत ही वाहियात पढ़ाया है इस वाले में, आई नो, आई नीड टू इम्प्रूव दिस। पर देखो ब्रीफ ये है, ठीक है। आई विल मेक अ री वीडियो अबाउट दिस वन, सो वॉच दैट वन, डू नॉट वॉच दिस वन, ओके। Now we are pretty clear, epsilon, delta, mitochondria, repair and primer. Fair enough, fair enough. ठीक हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये सब हम बाद में कर लेंगे। अभी हम आ जाते हैं डीएनए रिपेयर में। इसके 3 डिफेक्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज, बेस एक्सचेंज और मिसमैच रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जी वन फेज का है, बेस एक्सचेंज भी जी1 का है, पर मिसमैच रिपेयर जी2 फेज का डिफेक्ट है। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में क्या हो रहा है, द थायमिन डाइमर्स आर फॉर्म ड्यू टू द यूवी रेस। इसका डिजीज़ में आ जाता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। बेस एक्सचेंज रिपेयर में जी1 मेनली इज इन्वॉल्व, बट इट कैन अकर इन एनी फेस, और इसमें साइटोसिन डी एमिनेट्स टू यूरेसिल, ठीक है, साइटोसिन डी एमिनेट्स टू यूरेसिल। स्पॉन्टेनियस हीट, इंफ्रारेड, वायरल, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल दीज MU TYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस, ठीक है, मूथ पॉलीपोसिस जी1 फेज का, बट कैन अकर इन एनी फेज। बेस एक्सचेंज, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। मिसमैच रिपेयर जी2 फेज का है, प्रूफ रीडिंग डिफेक्ट होता है, HNPCC हो जाता है इससे, ठीक है। अब ये तो था अभी तक डीएनए के बारे में। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तो आरएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स आर 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। यूकैरियोट्स में they do not have any proofreading activity, RNA polymerase. They only have 5 prime to 3 prime polymerase activity. टाइप 1 जो होता है सारे के सारे RNA बना रहा है। टाइप 2 जो होता है वो MIMN SN लॉन्ग नॉन कोडिंग ये बना रहा है। टाइप 3 जो होता है
वो टी आर एन ए और 5s RNA फाइव एस आर एन ए बनाता है। टाइप वन कौन कौन से बना दे रहा है? 5.8, 18, 28, ये सब बना रहा है। बाकी एस एन और एस एन ओ ये नीचे वाला भी बनाता है। ठीक है, बट मोस्टली एस एन आर एन ए इफ दे आर आस्ट तो 2 पे जाओगे तुम, 3 पे नहीं आओगे। कौन सा एक एस एन आर एन ए है जो ये बना रहा है? U6 SN RNA जो होता है वो 3 वाला बनाता है। If you want to remember it, you can remember it. If you do not, just remember the broad categories. rRNA 1, 2 वाला mRNA और snRNA, miRNA, lncRNA, long non-coding RNA, और टाइप 3 वाला tRNA और 5sRNA। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, वेरी सिंपल। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होती है, इट हैज़ सर्टन सब यूनिट्स, अल्फ़ा बीटा गामा, नहीं अल्फ़ा बीटा सिग्मा ओमेगा ऐसे होते हैं। अल्फ़ा और ओमेगा वो एंजाइम असेंबली के लिए इंपॉर्टेंट है। बीटा बीटा प्राइम में, बीटा में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, बीटा प्राइम में टेम्पलेट बाइंडिंग एक्टिविटी होती है। बी फॉर बाइंडिंग, राइट। और फिर सिग्मा इज इनिशिएशन, वो रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर्स को। वेरी फेयर। अब यूरिनरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सी डेफिशिएंसी में क्या निकल रहा होता है? B9 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में फिग्लू निकल रहा है, B12 में एल मिथाइल मेलोनाइल एसिड निकल रहा है, लेकिन B6 डेफिशिएंसी में क्या निकलता है पता है? ज़ैंथियूरिक एसिड। ये याद रखना, ज़ैंथियूरिक एसिड। ओके, ठीक हो गया। दिस इज द डायग्राम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। कैटल पेरोक्सिसोम्स का कौन है? कैटलीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, राइबोसोम का rRNA, साइटोसोल का LDH, गोल्जी का गैलेक्टोसेल ट्रांसफरेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सोडियम पोटेशियम ATPase 5' न्यूक्लियोटाइडेज और एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, और क्या बात है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज और लाइजोजाइम का एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, तो लाइजोसोम्स का एसिड फॉस्फेटेज, लाइजोसोम में एसिड फॉस्फेटेज और माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज वरना ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज। अफेयर है। In the microsomes of hepatocyte, what happens is gamma carboxylation of glutamic acid residues. This happens by a vitamin K dependent carboxylase enzyme. 2, 3, 2, 7, 9, 10 are gamma carboxylated. Okay, जिसकी वजह से vitamin K, which was hydroquinone, which was in reduced or active form, is converted into epoxide by oxidase, which is oxidized form, and then epoxide reductase enzyme converts it into quinone reduced form, and then quinone reductase to hydroquinone. Now this warfarin inhibits this epoxide reductase enzyme, okay, और vitamin K reductase भी इसको बोलते हैं by a competitive manner. Then another disease which is very commonly asked, Menkes disease, लाइसाइल ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, कॉपर डेफिशिएंसी, ATP7A प्रोटीन, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, सेरुलोप्लाज्मन इसमें कम हो जाता है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव साइटोक्रोम जो कॉपर डेफिशिएंसी होती है इसमें, एंड ATP7A प्रोटीन इज abnormal। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेरुलोप्लाज्मन कम हो जा रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रे किंकी हेयर आर प्रेजेंट, टायरोसिनोनेज अफेक्टेड, सो देयर इज कोलाजन का डिक्रीज स्ट्रेंथ, लाइसाइल ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। इसी का काउंट अबाउट ATP7B का कॉपर एक्सेस वाला डिजीज़ विल्सन्स होता है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, थ्रो कॉपर इन बाइल, इनकॉर्पोरेट कॉपर इन सेरुलोप्लाज्मन, उस काम था वो अब काम नहीं कर रहा। सो देयर इज डिक्रीज इन द सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स, वहाँ पे भी डिक्रीज है, यहाँ पे भी डिक्रीज है। वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ATP7A है, ATP7B है, वो उसमें कॉपर डेफिशिएंसी, उसमें कॉपर एक्सेस है। विल्सन्स में क्या है? कॉपर इंक्रीजेज इन द लिवर, ब्रेन, किडनी, बोन मैरो एंड लीड्स टू hemolytic anemia. दिस इज द सनफ्लावर कैटरैक्ट विच यू कैन सी, एंड दिस इज द KF रिंग, ओके, ग्रीन गोल्डन ब्राउन पिगमेंट वाला डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में अक्यूमुलेट होने वाला कॉर्निया में सनफ्लावर केस ऑफ फिशर रिंग, जो कि विल्सन्स में मिलता है, विच इज़ रिवर्सिबल आफ्टर ट्रीटमेंट। फेयर इनफ।
At the end I'll tell you some other high yield points. Abhi just complete this vitamin table. Vitamin B1 thiamine, active moiety TPP, काम oxidative decarboxylation और एक ट्रांस कीटोलेज, ये दो एंजाइम्स, ठीक है. डेफिशिएंसी बेरी. B2 राइबोफ्लेविन FAD-FMN रिडॉक्स रिएक्शंस में मदद करता है. राइबोफ्लेविनोसिस ऑक्यूलो ओरो ऑक्यूलोजेनाइटल सिंड्रोम. नियासिन NAD NADP रिडॉक्स रिएक्शंस में काम करता है. पेलिग्रा डायरेक्ट डिमेंशिया डेप्थ. B5 पैंटोथेनिक एसिड, जिसमें कोएंजाइम ए और ACP आर इन्वॉल्व एंड असाइल कैरियर की तरह एक्ट कर रहा होता है. बर्निंग पीट गोपालन्स बर्निंग पीट सिंड्रोम. B6 pyridoxine PLP is the active moiety and सिंपल डिकार्बोक्सिलेज के लिए हमें ये चाहिए. ऑक्सीडेटिव के लिए हमको TBP चाहिए. और ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस. Neurological manifestation, carpal tunnel syndrome, anemia are other features. Glycogen phosphorylase is a simple one. Okay. B7 biotin biocytin carboxylation reactions में मदद कर रहा होता है and rare है इसकी deficiency. B9 folic acid THFA 1 carbon carrier megaloblastic anemia neural tube defect. Megaloblastic anemia with neurological deficiencies. B12 cobalamin methylcobalamin active form, methylmalonyl CoA mutase, homocysteine to methionine. ये दो इसके important काम है. Ascorbic acid hydroxylation reactions में काम करता है. Scurvy इसका disease है. Riboflavinosis, ये सब photos हैं. If you want to see, you can see vitamin A. You have this bitot spot and follicular hyperkeratosis, phrenoderma. Now I'm talking about all the rate limiting enzymes of the various pathway. Glycolysis में PFK1, TCA में you have citrate synthase, isocitrate dehydrogenase, succinyl alpha ketoglutarate dehydrogenase. Okay. Glycogen synthesis में ग्लाइकोजन सिंथेस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. B6 यूज करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्सी के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज. These are that enzyme. Beta oxidation of fatty acids में carnitine palmitoyl transferase 1. Okay. Fatty acid synthesis में acyl CoA carboxylase. I have not read these two nicely now. I will teach you these two abhi. Don't worry. Then ketone body synthesis में HMG CoA synthase. Cholesterol synthesis में HMG CoA reductase. I did not do this also. Purine synthesis में PRPP glutamyl amide transferase. Pyrimidine synthesis CPS2. G6PD HMP शंट में G6PD. हीम सिंथेसिस में ALA सिंथेस. प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में xanthine ऑक्सीडेज.